welcome back to your life skills class. Today we are starting a new chapter from your book The Mirror of Life by Wisdom Publications Green Apple International Series. So let's begin with a new chapter. So now let's begin with chapter number 5, and what's the name of the chapter? Little Hearts, Big Feelings. Hello children, close your eyes for a moment. Think about how do you feel today. So बच्चों आप अपनी आइज क्लोज करिए और फील बताइए मुझे कि आप आज कैसा फील कर रहे हैं. What are you feeling today? Are you feeling happy? Are you feeling sad? Are you feeling confused? Are you feeling angry? You have to tell how you are feeling today. These are called feelings. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? Are you happy, excited, calm, sad or angry? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना बच्चों, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं. कभी कभी हमें हैप्पी फील होता है, कभी कभी सैड, कभी कभी एक्साइटेड, कभी कभी हमें गुस्सा भी होता है. ठीक है, हमें एंग्री भी फील होता है. तो ये सारी बच्चों फीलिंग्स होती हैं. फीलिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर हार्ट. ठीक है, चलिए. फीलिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड इमोशंस. तो बच्चों फीलिंग्स को हम इमोशंस भी बोलते हैं. Everyone has feelings. सबकी feelings होती हैं. Feelings change every day. Sharing feelings is good. We must respect others' feelings. हम एक दूसरे की feelings को respect करना चाहिए और अपनी feelings को share करना भी आना चाहिए. Feelings are the emotions we feel inside us. They help us tell how we are feeling at the moment. Some feelings are happy, sad, angry, scared, surprised, excited and proud. तो बच्चों फीलिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने दिल में फील करते हैं, अपने अंदर हम जो फील करते हैं. ठीक है, कुछ फीलिंग्स यहाँ पे बताई गई हैं. हैप्पी है, सैड है, सरप्राइज्ड है, कंफ्यूज्ड है, प्राउड है. तो ये कुछ डिफरेंट फीलिंग्स हैं. और बच्चों फीलिंग्स को हम इमोशंस भी बोलते हैं. When we get a gift or play with friends, we feel happy. जब हमें कोई गिफ्ट देता है या हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो हमें खुशी होती है, हम हैप्पी फील करते हैं. When someone scolds us or we lose a toy, we may feel sad or angry. अगर कोई हमें डांट दे या हम अपना फेवरेट टॉय को हम कहीं खो आए तो हमें सैड फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना, हम सैड फील करते हैं और हमें एंग्री भी फील होता है. When we hear loud thunder or are alone in the dark, we must feel scared. तो जब हम लाउड सा थंडर सुन लें या हम अंधेरे में अकेले हों तो हमें डर लगता है ना, we feel scared. All feelings are natural. No feeling is bad. We must learn how to show our feelings in a good way. We should not shout or hurt others when we are angry. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बच्चों की सारी फीलिंग्स नेचुरल होती हैं, पर जब आप कभी गुस्से में हो, आपको गुस्सा कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ नेचुरल. पर गुस्से में आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है. ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केयर्ड. तो ये डिफरेंट फीलिंग्स हैं. We should talk calmly to parents or teachers. When we share our feelings, our heart feels lighter and peaceful. तो जब हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा जो हार्ट है हमें पीसफुल फील होता है, हमारा हार्ट काम फील करता है. ठीक है, so we should always try to talk to our parents and talk to our teachers calmly about our feelings. Okay, now understanding feelings help us become kind and caring people. Now let's read a story. Arav was very happy. It was his birthday. He wore his favorite dress and went to school. तो बच्चों आरव बहुत खुश था. क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे था. उसने अपने फेवरेट क्लोथ्स पहने और वो स्कूल गया. In the classroom, the teacher asked everyone to wish Arav. All his friends said, "Happy birthday, Arav." Arav felt proud and happy. जब वो स्कूल पहुंचा, उसकी क्लासरूम में टीचर ने सब बच्चों को बोला आरव को विश करने के लिए और सब ने आरव को विश किया, जिससे आरव को बहुत खुशी हुई. He was feeling very happy. During lunch break, Arav dropped his lunch box. The food fell on the floor. Arav felt sad and wanted to cry. तो लंच ब्रेक में क्या हुआ? आरव का जो टिफिन बॉक्स था वो ज़मीन पर गिर गया और उसका सारा खाना भी गिर गया. इस बात के बाद आरव को बहुत सैड फील हुआ और उसे रोना भी आ रहा था. His friend Meera saw him. She shared her lunch with Arav. Arav felt loved and thankful.
At the end of the day, Arav thanked Meera. तो फिर थोड़ी देर बाद मीरा, आरव की एक फ्रेंड है, जिसने आरव को देखा कि आरव कितना सैड हुआ है. ठीक है, तो मीरा ने अपना लंच बॉक्स आरव के साथ शेयर करा एंड आरव फेल्ट वेरी थैंकफुल. He told his teacher how he felt. The teacher said, sharing feelings makes friendship strong. तो उसने अपनी फीलिंग को मीरा के साथ शेयर करा. उसने उसको बताया दैट ही वॉज फीलिंग सैड एंड मीरा ने भी उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया और उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो गई. आरव वेंट होम स्माइलिंग. He learned that many feelings can come in one day and all feelings are okay. तो सुबह वो हैप्पी था, फिर वो सैड हो गया, फिर वो फिर से हैप्पी हो गया. तो देखो ऐसे ही आपके डे में भी आप डिफरेंट चीज़ें फील करते होंगे और ऐसा फील करना बच्चों नॉर्मल होता है. ठीक है, चलो अब हम एक्टिविटी टाइम देखेंगे. क्या है? फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग. हैप्पी. सो हैप्पी हम कब फील करते हैं? फीलिंग व्हेन वी लूज समथिंग, फीलिंग व्हेन समवन हेल्प्स अस, फीलिंग व्हेन वी स्माइल, फीलिंग व्हेन वी आर अपसेट, फीलिंग व्हेन वी डू वेल. तो हैप्पी कब होते हैं? फीलिंग व्हेन वी आर स्माइलिंग, व्हेन वी स्माइल. सो सेकेंड वन इज सैड. सो सैड हम कब फील करते हैं? इट इज अ फीलिंग व्हेन वी आर अपसेट. एंग्री, फीलिंग व्हेन वी लूज समथिंग. थैंकफुल, फीलिंग व्हेन समवन हेल्प्स अस. जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम थैंकफुल फील करते हैं. प्राउड, फीलिंग व्हेन वी डू वेल. जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें प्राउड फील होता है ना. चलो अब करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. व्हेन डू वी फील प्राउड? व्हेन वी डू समथिंग गुड. हु हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स? पेरेंट्स एंड teachers. So we will take this. What should you do when a friend is sad? We should help and comfort. Okay, moving ahead to the fill in the blanks. We all have different dash. We all have different feelings. So you will write feelings. It is okay to feel dash or sad. It is okay to feel happy or sad. We should dash our feelings with our trusted people. We should share our feelings with trusted people. Helping others makes us feel happy. और आप यहाँ पे लिख सकते हैं proud. Helping others makes us feel proud या फिर helping others makes us feel happy. Friends here help each other in good and bad times. Okay, moving ahead to answer in one line. So what is the first question? How do you feel when you win a game? जब आप अपना गेम जीत जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? I feel happy and proud. आपको खुशी होती है और आप प्राउड फील करते हैं. How do you feel when someone shouts at you? I feel sad and angry. Yes? Okay. Now let's see the moral message. Feelings help us understand ourselves. All feelings are okay. सारी feelings जो हैं वो normal होती हैं. They are okay. Sharing feelings makes us calm. Be kind to others' feelings. Do not hide your emotions. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें को अच्छे से ध्यान रखना है. Okay, now think point. What can you do when you feel very angry? जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आंसर आपको खुद से सोच के लिखना है. आप लिख सकते हैं कि whenever I feel angry, I should try to calm myself and not hurt anyone. ठीक है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं हम ज़्यादातर सामने वाले इंसान को हर्ट कर जाते हैं. पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम गुस्से में हों, जब हम एंग्री हों तो हमें किसी को हर्ट नहीं करना है. We should not hurt anyone when we are angry. Now moving ahead to the fun factory. Color 4 faces showing different feelings. देखो ये आपको different feelings दिखा रहे हैं 4 faces. First is the happy face, angry face, sad face and surprised face. तो आपको इन चारों faces को अपने favorite colors से color करना है. ठीक है बच्चों? Very good. Thank you so much for watching. This was the end of the chapter. We'll meet in the next chapter now. Until then, goodbye and take care.